This conference will now be recorded. Hello student, once again welcome you all. Myself Samadhan Patel, and today we will start the Cauchy or Euler homogeneous linear differential equation. So this is a special kind of equation uh, that we are going to study. So in this lecture, until we study the standard linear differential equation, then different methods actually. We have studied different methods to solve the standard linear differential equation. So whatever we have talked, so it is about only, okay, so it is about what? Standard linear differential equation. Okay, we have seen the uh, complementary function for that, particular integral for that. Okay, so now today we will see what is the Cauchy or Euler homogeneous linear differential equation. Okay, so it is some special kind of equation. So before understand the general form of Cauchy or Euler homogeneous linear differential equation, so we need to understand what is the standard LD. Okay, so we just going to revise that. So standard LD is what? So we have standard LD is given by, so it is given by what? देखो हमने ये इक्वेशन देखा था स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन a नॉट d रेस टू n y by d x रेस टू n. सो फाइनली वी जस्ट हैव टू कंपेयर. आपको ये कंपेयर करना है कोची इक्वेशन से, कोची और यूलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो a नॉट d रेस टू n y by d x रेस टू n प्लस a1 d रेस टू n minus 1 y by dx raised to n minus 1 plus a2 d raised to n minus 2 y by dx raised to n minus 2 plus up to a and y. This is equal to function of x. Okay, fx. So this is a standard linear differential equation that we have seen. हमने इसका सॉल्यूशन भी देखा और इसको हमने ऑपरेटर डी में भी कन्वर्ट किया. Am I right? So we can have also the operator d. So we have the conversion of this equation in terms of operator d. Okay. तो अभी जो हम कोची और यूलर होमोजेनियस इक्वेशन देखने वाले हैं दैट इज of this form. So just compare and tell me what is the difference between these two. Okay, so the Cauchy equation or Euler homogeneous equation linear differential equation with constant coefficient is given by, see the standard form of this equation is what? It is a naught x raised to n d raised to n y by dx raised to n plus a1 x raised to n minus 1 d raised to n minus 1 y by dx raised to n minus 1 plus up to a and y. This is equal to fx. So if we compare this equation number 1 and equation number 2, this is your 1 and this is your 2. What is the major difference between these two? Okay, so this is the standard LD, okay, and this is Cauchy equation. So if you observe these two equations, so you can find out, अगर आपने ये ठीक से दोनों को ऑब्जर्व किया और कंपेयर किया तो आपको एक ध्यान में आएगा कि बता सकता है कोई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू. In this Cauchy equation this term of x is there, this term is x is here. See, you can find this term is everywhere in this every term, but it is not present in the standard form. ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे x क्या टर्म नहीं है, देखो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा.
और यहाँ पे ये कोची इक्वेशन में ये आ रहा है एक्स रेस टू एन, यहाँ पे एक्स रेस टू एन माइनस वन, यहाँ पे अगले टर्म में एक्स रेस टू एन माइनस टू होगा, उसके अगले टर्म में एक्स रेस टू एन माइनस थ्री होगा एंड सो ऑन। और इसके आगे की जो टर्म है वो क्या होगी आपकी, यहाँ पे आपकी टर्म होगी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसके आगे की टर्म होगी आपकी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसे टर्म्स वहां पे होंगे। ओके, तो x का टर्म मुझे दिख रहा है जो एक्सेस है, if we compare with standard form. So this is the general form of Cauchy or Euler homogeneous linear differential equation. Okay, so is called equation number 2 is called standard general form, general form of Cauchy or Euler homogeneous linear differential equation. So equation 2 is called general form of Cauchy or Euler homogeneous linear differential equation. Okay, so this is a general form of Cauchy equation. Now we don't have the solution. अभी इसको solve करना है। ये general form तो पता चल गया, difference क्या है, standard form में इसका x का term नहीं है पर यहाँ पे x का term है, तो आप easily ये check कर सकते हो कि कौन सा Cauchy equation है और कौन सा standard equation है। तो हर एक जो dy by dx का term होगा आपका, तो उसको x का अगर d square y by dx square हुआ तो इसको x square मल्टीप्लाई में आएगा, अगर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हुआ तो उसको एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में आएगा। इन जनरल अगर डी रेस टू एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन का टर्म होता है तो उसको एक्स रेस टू एन मल्टीप्लाई में आएगा। ओके, अगर एक्स का टर्म कहाँ पे भी नहीं होता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि इस टर्म में एक्स का टर्म है और इस टर्म में नहीं है, एक्स का टर्म नहीं, ऐसा नहीं होगा। दैट इक्वेशन इज नॉट देयर। ओके, अगर एक्स होगा तो हर एक टर्म में होगा और उसका पावर भी ऑर्डर के हिसाब से होगा। अगर इस मीन्स देखो अभी यहाँ पे अगर डी रेस टू एन माइनस वन है तो यहाँ पे भी एक्स का पावर एन माइनस वन ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एन माइनस वन है और यहाँ पे एन माइनस थ्री आएगा एक्स का पावर, तो ऐसा टर्म नहीं होगा इक्वेशन में। एक्स रेस टू एन माइनस थ्री इंटू डी रेस टू एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन, ऐसा टर्म नहीं आएगा इक्वेशन में। अगर एक्स रेस टू एन माइनस थ्री है तो उसके मल्टीप्लाई में आपको डी रेस टू एन माइनस थ्री वाई बाई डी एक्स रेस टू एन माइनस थ्री मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म तो समझ में आ गया सर, हर एक टर्म में एक्स का टर्म ऐड हो रहा है, ऐड मीन्स कोएफिशिएंट को एक्स का टर्म मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है, व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ओके, सो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर टू मीन्स कोची इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो कोची इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखो आपने लोअर स्टैंडर्ड में दो टाइप के इक्वेशन देखे हैं, एक होमोजीनियस इक्वेशन देखा है और दूसरा देखा है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, होमोजीनियस देखा है और नॉन होमोजीनियस देखा है। तो अगर आपको तो आपको इसका मेथड पता है होमोजीनियस कैसे सॉल्व करते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो आप क्या करते हो, ये नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हो। ओके, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन आपका इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, व्हाट इज द बेटर वे टू सॉल्व दैट, convert that non-homogeneous equation to homogeneous equation. Okay, so once if you convert that equation, then you know how to solve this homogeneous equation. और वो जो substitution आपने लिया है नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए, वो बाद में रिप्लेस कर दो। जैसे हमने इंटीग्रेशन में भी देखा, देखो अगर डिफिकल्ट इंटीग्रेशन हुए तो कुछ इंटीग्रेशन में हम सब्सटीट्यूशन लेते हैं। सब्सटीट्यूशन क्यों लेते हैं, वो इंटीग्रेशन इजी होने के लिए। तो इजी हो गया, हमने सॉल्व कर लिया और जिसके लिए सब्सटीट्यूशन था वो रिप्लेस कर दिया। तो सेम यहाँ पे हमको करना है। अभी हमारे पास तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोची इक्वेशन का, we don't have the solution for this equation number 2, but we have the solution of standard LD.
So better way to solve the equation number 2 is what? Better way to solve the Cauchy equation is what? Convert this equation to standard linear differential equation by using suitable substitution. Are you getting this? Okay, so how you convert that equation and what is the suitable substitution? What is the standard substitution to convert the given Cauchy equation to standard linear differential equation? Okay, so for the solution of equation number 2, that is for the solution of Cauchy or Euler homogeneous equation, equation number 2, or you can say it is for the equation of for the solution of Cauchy equation, Cauchy homogeneous equation. Okay, so we first convert it to standard form, standard LD. Standard LD में वो convert करना है. Or once if you convert that in the standard LD, then we know the solution by using suitable substitution. And what is that suitable substitution? ये suitable substitution क्या होगा? Okay, so by using suitable substitution, and that is what? That substitution is simply your x is equal to e raised to z. जहां पे आपका x है वहां पे आपको e raised to z लेना है, और इट इज सेम एज z इज इक्वल टू log ऑफ x. दोनों सेम है, अगर आपने इसका log लिया तो ये मिल जाएगा. ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको यूज करना है इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 में ये आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, और इसका यूज करके जहां पे x है वहां पे e raised to z डालना है, जहां पे log x है वहां पे z डालना है. तो ठीक है सर, x तो रिप्लेस कर देंगे, अगर log x आया टर्म में तो वो भी z से रिप्लेस कर देंगे. बट हाउ वी कैन रिप्लेस दिस dy by dx टर्म? तो dy by dx कैसे रिप्लेस करना है? तो उसका तो कुछ करना पड़ेगा सर. So yes, we can have the steps for that also. देखो अभी z इज इक्वल टू log x है हमारे पास, तो हमको क्या रिप्लेस करना है? देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया, यहाँ पे ये जो टर्म होता है ये कौन सा टर्म होता है आपका? x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स का टर्म होता है यहाँ पे. तो अभी हम लोअर ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे और फिर हायर ऑर्डर को जाएंगे. तो x डिवाइड बाई डी एक्स पहले रिप्लेस करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? देखो अभी ये z दिख रहा है मुझे, इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर मैंने z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिया तो क्या मिलेगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x? सो इट इज dz by dx is equal to 1 upon x. Am I right? Yes. Okay. तो अभी मैं dy by dx का टर्म लिखता हूँ. व्हाट इज dy by dx? Okay. Now consider dy by dx. ये dy by dx कैसे लिख सकते हैं हम? चेन रूल है हमारे पास डेरिवेटिव का. वी कैन राइट दिस एज dy by dz into dz by dx. मुझे ये पूरे इक्वेशन में से, देखो ये पूरे इक्वेशन में से x एलिमिनेट करना है. टू एलिमिनेट x, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन किसके लिए ले रहा हूँ? x के लिए सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ. तो x का टर्म नहीं चाहिए मुझे, x नहीं चाहिए पूरे इक्वेशन में. इक्वेशन नंबर 2 में x नहीं दिखना चाहिए कहाँ पे भी. ओके, तो मैं उसके लिए z सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ e raised to z. ओके, तो हमारा ये नया जो इक्वेशन मिलेगा इक्वेशन 2 को रिप्लेस करके, वो y और z में रहेगा. y रहेगा उधर, ध्यान में रखो. y should be there. That new equation is in terms of y and z totally. There is no x because we are replacing that x with e raised to z. तो x के लिए हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, तो that x should not be there. ओके, तो ये समझ में आया होगा. dy by dx is equal to dy by dz into dz by dx. This is the substitution. Okay, so this is the chain rule, actually chain rule of derivative.
दिस इज चेन रूल। मैं 12th स्टैंडर्ड में भी देखा है, अगर डिप्लोमा में डेरिवेटिव होगा वहां पे भी ये चेन रूल है। और अगर आपको फिर भी नहीं पता होगा, सो यू कैन जस्ट गो टू द बेसिक लेक्चर ऑफ डेरिवेटिव दैट वी हैव अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, तो जस्ट गो थ्रू दैट, यू कैन फाइंड आउट दिस रूल ओवर देयर। ओके, डेरिवेटिव का ये चेन रूल मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन फाइंड आउट दैट रूल ऑल्सो। इट इज वेरी सिंपल रूल। तो ये dz dz कैंसिल हो जाता है, dy बाय dx मिलता है। तो dy बाय dx अगर इट इज अ कंपोजिट फंक्शन देन इट इज वेरी यूजफुल। ओके, तो हमें फिलहाल इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो ये सिर्फ आप इस पर फोकस करो। dy बाय dx कैसे लिखा मैंने, खाली ये जो dz दिख रहा है आपको, सो दैट dz आई हैव जस्ट चेंज, दिस आई हैव एडेड दैट, इट इज लाइक दिस। अगर a अपॉन b लिखना है आपको, तो यू कैन सिमिलरली लाइक दिस, a अपॉन b, a अपॉन सी, सॉरी, a अपॉन सी इंटू सी अपॉन बी। तो ये सी सी कैंसिल हो जाएगा और आपको a अपॉन बी मिल जाएगा। ऐसा सेम इधर यहाँ पे मैंने वही किया है, तो यू जस्ट नोटिस दैट। ओके, so this is dy by dz into dz by dx, but I have the value of dz by dx, so this value I have from here, just replace that value, what I get, dy by dx is equal to dy by dz इंटू 1/x। ये वैल्यू डालता हूँ, अभी ये x डिवाइड में है, यहाँ पे रिप्लेस शिफ्ट करता हूँ मैं, ये x डिवाइड को है, अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो आई गेट सिंपली x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। देखो यहाँ से x निकल गया अभी, मीन्स ये जो वैल्यू है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, this value, I just replace that value with dy by dz, and also this can be written as capital D into y, where your capital D is nothing but d by dz. Got it? तो ये जो x dy by dx है यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये किसने रिप्लेस करना है आपको, dy by dz से रिप्लेस करना है। अभी x निकल गया देखो, और उसके मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं है, मीन्स वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट चलेगा हमको, क्योंकि स्टैंडर्ड एलडी में ये सभी कांस्टेंट ही है, A1 A2 A3 A0 सभी। हमको वेरिएबल नहीं चाहिए, एक्स का टर्म नहीं चाहिए, दैट आई हैव रिमूव बाय टेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो x डिवाइड बाय dx तो मैंने रिप्लेस कर लिया dy से। सिमिलरली अगर x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हुआ, तो अभी उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, यू कैन फाइंड आउट दैट विद द सेम प्रोसेस। ओके, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर अगर हुआ, तो किसने रिप्लेस करना है, d d माइनस वन इंटू वाई, इससे रिप्लेस करना है। ओके, अगर आपके इक्वेशन में एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब है, तो वो किसने रिप्लेस करना है, d d माइनस वन d माइनस टू इंटू वाई से रिप्लेस करना है, एंड सो ऑन इफ योर इक्वेशन हैज x रेस टू n d रेस टू n y बाय डी एक्स रेस टू n, तो ये जो टर्म है आपको किससे रिप्लेस करना है, d d माइनस वन d माइनस टू, लास्ट टर्म कोई बता सकता है क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे d माइनस टू है, अगर यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे अगर पावर टू है, तो यहाँ पे d लास्ट टर्म d माइनस वन है, तो अगर पावर n होगा तो यहाँ पे d माइनस क्या होगा, n माइनस वन होगा इंटू वाई। यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, so if you have any doubt you can ask. So now with the help of this all substitutions, so replace करना है ये सारा वैल्यू। देखो अभी ये जो टर्म है आपका इक्वेशन में, x रेस टू n d रेस टू n y बाय डी एक्स रेस टू n, ये पूरा टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये पूरा टर्म से। ओके, तो आपको सेकेंड और थर्ड ज्यादा से ज्यादा रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ये तीनों ध्यान में रखो, अब यहाँ तक, ज्यादा इसके आगे नहीं होगा। तो यूजिंग substituting all above values, what I get, equation 2
can be converted to standard LD, वो standard LD में convert हो जाएगा. Okay, and whose solution is known. उसका solution तो हमको पता है. YC निकालना है, YP निकालना है. YP निकालने के लिए there are 3 methods, general method, shortcut method, MVP है, तो आप कौन सा भी यूज कर सकते हो. So one thing is very important here, whatever the solution we get, it is in terms of Y and Z. Whose solution is known, but it is in terms of Y and Z. So after finding the solution, you have to resubstitute the values. Okay, so whatever you have taken the substitution, that is x is equal to e raised to z और z is equal to log x, तो ये वैल्यूज आपको रीसब्स्टिट्यूट करने हैं फाइनल सॉल्यूशन में, तो आपको वो स्टैंडर्ड एलडी सॉरी कोची इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा. यू अंडरस्टैंड. ओके, सो देखो अभी ये न्यू कोर्स जो आया है 2019 पैटर्न, तो इसमें तो ऑनलाइन एग्जाम नहीं है अभी. तो ऑनलाइन एग्जाम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था. इस पर एक श्योरली एग्जाम क्वेश्चन रहता था. व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन टू कन्वर्ट द कोची इक्वेशन टू स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो it is obviously x is equal to e raised to z or z is equal to log x. Okay, so ये MVP पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे ऑनलाइन एग्जाम में, जैसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, व्हाट इज द w Wronskian. Okay, so what is the limitation of method of variation of parameter. Again there are some questions on general method. Okay, तो आपको ये अभी ये जो नया पैटर्न आया है इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो दैट आर व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. सो एक 2 मार्क्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल वहां पे होंगे. सो मिनिमम, सॉरी नॉट मैक्सिमम, मिनिमम 3 मार्क्स के लिए, मैक्सिमम 4-5 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. ओके, दैट पैटर्न इज नॉट वी हैव, बट इफ जैसे वो पैटर्न आता है आई विल डेफिनेटली डिस्कस विथ यू. आई विल explain how the questions will come. Okay, on which topic that actually questions are for the particular weightage. Okay, now but here whatever the equation we have, okay, so first what we have to do, we have to convert that equation in the standard form and then we are going to solve that equation. Okay, so with the help of MVP or with the help of shortcut method or with the help of general method. Okay, so let us try to see the example based on the Cauchy or Euler homogeneous linear differential equation and how we can solve that and what type of example should be there in the exam, that we will also discuss. Okay, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल नंबर 1, solve x square d square y by dx square minus x dy by dx whose plus 4y. मैं फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज करना चाहूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्पल दिया है वो 2 बार चेक करके आंसर शीट में लिखो, क्योंकि वहां पे दिया कुछ होता है, आप लिखते कुछ हो और इसलिए सॉल्यूशन कुछ अलग ही आता है. तो जस्ट फोकस ऑन दैट, वॉट एवर इट इज गिवन, फर्स्ट चेक एंड देन गो फॉर द सॉल्यूशन. दैट इज cos ऑफ log x. यहाँ पे देखो log x की टर्म आई है अभी, तो कल पिछले लेक्चर में शायद विकी ने पूछा था, सो वेयर दैट log x comes in the example. Okay, so there are certain rules actually. So here we can have the replacement of log x, that's why log x is here. Okay, because in the substitution we have seen that log x can be replaced by z, that we will discuss again. So x into sine of log x
लाइक दिस इज द एग्जाम्पल। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको दिख रहा है, देखो कि x का टर्म यहाँ पे है, दिस इज द टर्म x। तो ये कोची इक्वेशन है। अगर ये x का टर्म नहीं होता है तो ये कोची इक्वेशन नहीं होगा। और एक बात देखो, यहाँ पे इस टर्म का ऑर्डर 2 है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो x का भी ऑर्डर 2 आया है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, तो x का ऑर्डर भी 1 है। So these things are very basic and important to understand the solution of this equation also. Okay, so it is a Cauchy equation, straightforward. The given equation is Cauchy equation, Cauchy or Euler homogeneous equation, homogeneous LDE. Okay, so we just have to convert this in the standard linear differential equation. Standard linear differential equation में हमको convert करना है. And so to convert that, put y is equal to what? Put y is equal to e raised to z or z is equal to log x. ये substitution लेना है. Okay, इसको 1 लेते हैं. So if you take this substitution, then what I get here? So simply तो यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन सा टर्म है, dy बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली आपको लिखना है x dy बाई डी एक्स कैन बी रिप्लेस बाय कैपिटल dy and x square d square y by dx square is equal to d minus 1 into y। इतना ही लिखना है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने वो पूरा एक्सप्लेनेशन में बताया कि ये कैसे टर्म आ रहा है वहां पे, हाउ वी कैन रिप्लेस दैट टर्म। So that is not the part of example actually. That is part of this theory part. It is actually the theory part to solve this, to understand this step. Okay, जब आप इक्वेशन सॉल्व करने जाते हो, जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, तो वो सारी बेसिक चीजें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना लिखो कि आप सब्स्टिट्यूशन क्या लिख रहे हो और क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो कौन से वैल्यू से। तो हम dx dy बाई डी एक्स जो ये पूरा वैल्यू है, ये किससे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? कैपिटल डी वाई से। और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म है किससे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? डी इंटू डी वाई, डी माइनस 1 इंटू वाई। तो ये डी क्या है यहाँ पे? योर डी इज नथिंग बट डी वाई डी जेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारा जो कैपिटल डी था वो डी बाई डी एक्स था, यहाँ पे डी बाई डी जेड है। ये थोड़ा सा आप उसके फोकस करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, देखो अभी इक्वेशन 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो इक्वेशन 2 बिकम्स, देखो अभी सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स यूर डी डी माइनस 1 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसके लिए तो मैंने सब्स्टिट्यूशन कर लिया पूरा, इसके लिए ये वैल्यू डाला। अभी एक्स डी वाई बाई डी एक्स मीन्स कैपिटल डी इंटू वाई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कैपिटल डी इंटू वाई। तो नेक्स्ट टर्म है मेरा +4 इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा देखो अभी, कॉस ऑफ लॉग एक्स। अभी लॉग एक्स का वैल्यू क्या है मेरा? z। तो कॉस लॉग एक्स के जगह पे मैं z रिप्लेस करूंगा, इट इज कॉस ऑफ z प्लस, अभी x क्या है मेरा? व्हाट इज x? x इज नथिंग बट e रेज टू z, so replace that x with e raised to z, so this is e raised to z into sin of, फिर से आपका log x means z, ये ऐसा रिप्लेस हो गया ये इक्वेशन। ओके, तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो अभी ये सॉल्व कर लो, y कॉमन निकाल लो, व्हाट इज देयर इनसाइड द ब्रैकेट? सो दैट इज d into d means d square, minus 1 into d is minus d। okay, so minus d is there again as it is, and +4 into y outside, this is equal to cos of z plus e raised to z into sin of z हो जाएगा मेरे। तो अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ, माइनस डी मीन्स माइनस 2d, सो फाइनली व्हाट आई गेट, द इक्वेशन इज d square minus 2d plus 4 into y is equal to cos of z plus e raised to z into sin of, call it as equation number 2। ये इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। दिस इज स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
देखो अभी x मल्टीप्लाई में नहीं है, वहां पे x निकल गया. दिस इज द स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y एंड z. तो अभी इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो बहुत बार ये ऑनलाइन में इस पर भी एक क्वेश्चन रहता था कि using the substitution y is equal to e raised to z or z is equal to log x, equation 1 can be converted to, or there are four options for this equation number 2. ओके, तो अगर कभी भी ऑनलाइन, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के लिए आपके कॉलेज में ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं. ओके, इंटरनल असेसमेंट तो टर्म वर्क के 25 मार्क्स होते हैं कॉलेज के हाथ में. जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए आपके टेस्ट परफॉर्म टेस्ट कंडक्ट करता है, और वो बेसिकली ऑनलाइन क्वेश्चंस वहाँ पे डालते हैं. तो अगर ये ऐसा क्वेश्चंस वहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है वहाँ पे कि दैट इक्वेशन कैन बी कन्वर्ट टू इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज द these are the there are four options for this equation number 2 and your correct option is this. Okay, तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है कोची इक्वेशन, इसमें अगर हमने ये सब्स्टिट्यूशन लिया तो ये इक्वेशन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वही पूछते हो कि कौन से इक्वेशन में वो कन्वर्ट होगा, तो इस ये आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये साइड तो और बराबर करते हैं. देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो मिस्टेक एक्चुअली इन दिस साइड. ओके, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 बराबर है, बट दे हैव कमिटेड द मिस्टेक इन द राइट हैंड साइड, cos z e raised to z sin z. वो रिप्लेसमेंट ही नहीं करते वहां पे, वो cos ऑफ log x x into sin ऑफ log x ही रहने देते. और अगर फाइनल एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं. Okay, so while the paper assessment work, we can see there that these certain mistakes over there. Okay, so these are some common mistakes. तो अगर राइट हैंड साइड आपने रिप्लेस नहीं किया तो हाउ इट इज द स्टैंडर्ड देन. ओके, वो सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ ना. अगर आप इंटीग्रेशन में, जैसे कल देखा हमने e raised to x into e raised to x dx, पिछले लेक्चर में देखा, इसके लिए आपने e raised to x का सब्स्टिट्यूशन किया, e raised to x इज इक्वल टू t रिप्लेस किया. तो अगर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये e raised to x ऐसे ही रहने दिया और e raised to t dt यहाँ पे कर लिया मैंने, तो इसका आंसर नहीं मिलेगा ना मुझे. x के लिए सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, x का टर्म ही नहीं चाहिए मुझे पूरे इक्वेशन में. तो व्हेन आई एम सब्स्टिट्यूटिंग समथिंग फॉर x, then that x should not be there in the example equation जो रिप्लेस करके मिलने वाला है. तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में कहीं पे मुझे x नहीं दिख रहा है. अभी देख लो, ये पूरे इक्वेशन में x नहीं है अभी. देयर इज नो x इन दिस इक्वेशन. नाउ वी कैन सॉल्व, व्हिच इज स्टैंडर्ड LDE, व्हिच इज स्टैंडर्ड LDE. ओके, तो और इसका सॉल्यूशन हमको पता है, उस सॉल्यूशन इज नोन. ओके, तो द सॉल्यूशन ऑफ 1, अभी मैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो है वो मैं इक्वेशन नंबर 2 का फाइंड करने वाला हूँ. सॉल्यूशन ऑफ 2 इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है हमको सेम जैसे हमने वो स्टैंडर्ड एलडी सॉल्व किया वैसे ही करना है यहाँ पे. सो व्हाट इज माय ऑक्सिलरी इक्वेशन, माय ऑक्सिलरी इक्वेशन इज b स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0. ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया. ओके, और अगर आप इसके रूट्स, दिस इज I think not reducible. It is irreducible. We cannot reduce this equation. We cannot get real roots. Real roots आपको चेक करने हैं तो ये भी एक फॉर्मूला है. सिंपली आप b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो. b मीन्स माइनस 2 है, a मीन्स 1 है यहाँ पे, और c मीन्स 4 है. तो ये अगर फाइंड करते हो आप, b स्क्वायर मीन्स माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 means 4 minus 16 is minus 12. It is less than 0. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से कम आता है तो देर आर इमेजिनरी रूट्स.
रूट्स आर नॉट रियल। तो ये तो बेसिक है एक्चुअली, ये आपको इसका रूट्स पूरा कैलसी से मिल जाएगा, तो इसका कुछ इसको देखने की कुछ जरूरत नहीं है। ओके, यू कैन फाइंड आउट द रूट्स विद द हेल्प ऑफ कैलसी डायरेक्टली। सो आपको कैलसी से ये रूट्स मिल जाएंगे, d इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3i, तो ऐसे रूट्स मिल जाएंगे। तो आपका ये जो अल्फा है 1 हो गया, बीटा है √3 हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा आ जाएगा, इट इज e रेज टू अल्फा एक्स, मीन्स अभी एक्स नहीं होगा, ध्यान में रखो, क्योंकि हमारा इक्वेशन इट इज इन टर्म्स ऑफ y एंड z। x के जगह पे मैंने z लिया है, तो जहां पे भी सॉल्यूशन में x होगा वहां पे z जाएगा, तो इट इज व्हाट, e रेज टू 1z in bracket c1 cos of √3z plus c2 sin of √3z. This is my solution. This is my complementary function. Okay, so try to focus on the how I am finding the solution. Okay, so I am taking the solution in terms of z and y, not in terms of x. और जो complete solution होगा उसमें फिर हम रिप्लेसमेंट करेंगे, तब तक ये ऐसे ही रहेगा। ओके, सो c1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 sin ऑफ बीटा एक्स होता था, अभी c1 cos ऑफ बीटा जेड प्लस c2 sin ऑफ बीटा जेड, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है, x के जगह पे z लिया है, तो इसलिए तो सॉल्यूशन आपका y और z में रहेगा। सो कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3, ये yc मिल गया। नाउ व्हाट इज yp? yp इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू, पहले तो क्या है देखो, ये वाला देखना है आपको, cos ऑफ z प्लस सी रेज टू साइन ऑफ z। ओके, so it is simply in bracket cos of z plus e raised to z into sin of z। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली सेपरेट कर देंगे दोनों टर्म, सेपरेट द बोथ टर्म्स इफ यू आर यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। तो जनरली हमको शॉर्टकट मेथड ही यूज करना है, डोंट गो फॉर जनरल एंड एमवीपी हियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, दिस इज इक्वल टू, ये तो 1 अपॉन पहला टर्म आपका हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ जेड, प्लस सेकेंड वाला हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू ई रेज टू जेड साइन ऑफ जेड, लाइक दिस, ऐसे मिल जाएगा। तो अभी ये दोनों सॉल्व करना है, इसका तो पहला केस, सॉरी सेकेंड केस, अगर साइन एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी हुआ तो हम डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए, तो ये रिप्लेसमेंट करना है। यहाँ पे डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर, तो ये ए यहाँ पे 1 है, तो डी स्क्वायर रिप्लेस बाय -1, और इसके लिए ई रेज टू एक्स इंटू वी का केस यूज करना है, तो ये 5th नंबर का केस, तो देखेंगे हम वो कैसे यूज करना है। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस 2d प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ जेड प्लस, तो ई रेज टू जेड तो बाहर आ जाएगा, जहां पे d है आपका वहां पे क्या रिप्लेस करना है आपको, d प्लस ए रिप्लेस करना है। ए मीन्स ई रेज टू जेड में जो पावर होगा, जेड का जो कोएफिशिएंट होगा वो, तो वो यहाँ पे 1 है, तो रिप्लेस d बाय d+1, तो यहाँ पे d के जगह पे d+1 रिप्लेस करना है, तो ब्रैकेट में ये, सॉरी नॉट इन द ब्रैकेट, तो यहाँ पे 1 अपॉन d+1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू d+1 प्लस 4 इंटू साइन ऑफ जेड, ऐसा आ जाएगा। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, तो अभी
अगर ये पहला टर्म मैंने सॉल्व किया, -1 + 4 मीन्स +3 हो जाएगा। दिस इज 1/3 - 2d यहाँ पे आएगा इंटू कॉस ऑफ जेड प्लस e⁻² का काम हो गया, वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 1/ मुझे मिलेगा, ये एक्सपांशन कर लो d+1 का, तो इट इज d² प्लस 2d + 1, a प्लस b का एक्सपांशन जैसे होता है वैसे, 2d एज इट इज, -2 into 1 is -2 plus 4 into sine of z like this। तो यहाँ पे d² नहीं है डिनोमिनेटर में, पहले टर्म में यहाँ पे d² नहीं है, तो क्या करना है, तो मुझे रैशनलाइज करना है, उसका जो कोई कॉन्जुगेट होगा उसने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। तो वो हो जाएगा मेरा 1/3 - 2d है ना, तो वहां पे मैं 3 + 2d से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूंगा। गॉट इट? ये किया है हमने जन शॉर्टकट मेथड में, ये सारे एग्जांपल्स इस टाइप के हमने सॉल्व किए हैं। 2d इंटू कॉस जेड वहां पे होगा, और यहाँ पे प्लस e⁻² एज इट इज। तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, अभी देखो 2d और -2d कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ क्या मिलेगा, 1/d² एज इट इज, 1 - 2 is -1, -1 + 4 means +3, I think this is +3। okay, so d² + 3 into sine of z is like this। now अभी देखो ये a - b है आपका, वो ये a + b है, तो दिस इज a - b, दिस इज a + b, तो इसका a² - b² हो जाएगा। एंड ऊपर यहाँ पे 3 + 2d एज इट इज, 3 + 2d divided by a² means 3 का स्क्वायर 9 minus 2d का स्क्वायर means 4d²। अभी देखो d² मिल गया डिनोमिनेटर में। ओके, into cos of z is there plus e⁻² as it is, फिर से सेकेंड केस रिप्लेस d² by -a²। तो a यहाँ पे 1 है, d² के जगह पे मैं -1 रिप्लेस करूंगा into sine of z। That's it, I got that। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ रिप्लेसमेंट करनी है, जहाँ पे d² है यहाँ पे -1 रिप्लेस करना है, 3 + 2d इंटू कॉस जेड, ये इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, दिस इज कॉस ऑफ जेड डिवाइडेड बाय रिप्लेस d² बाय -1 अगेन, सो 9 - 4 इंटू -1 plus e⁻² as it is, -1 plus 3 means +2 e⁻² into 1/2 cos of sine of z मिल जाएगा। तो दिस इज समवॉट लेंदी एग्जांपल एक्चुअली, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे करने हैं, तो ये इजी होता है बट इट इज लेंदी। ओके, तो चॉइस आपका है, अगर ये सिंपल लगता है आपको यू कैन गो फॉर दैट, बट माय एडवाइस टू गो फॉर अबाउट 2 एग्जांपल्स। ये एक एग्जांपल इस पे रहेगा, ये कोची पे, कोची इक्वेशन और लीजेंड्रे इक्वेशन, दैट इज अपकमिंग एग्जांपल। ओके, अपकमिंग पार्ट ऑफ दिस यूनिट, लीजेंड्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कोची होमोजेनियस एंड लीजेंड्री होमोजेनियस। ये दोनों में से एक एग्जांपल कुछ वहां पे रहेगा तीनों एग्जांपल में, और ऊपर के दो, एक तो एमबीपी पे फिक्स रहेगा, और ये एक आपको इधर यू कैन सॉल्व शॉर्टकट और जनरल, ऐसे 3 एग्जांपल्स क्वेश्चन नंबर 1 में होंगे आपके लिए। तो अगर पहले शॉर्टकट मेथड और एमबीपी अगर आप फिक्स करते हो अच्छे से, तो ये अगर नहीं भी आता है आपको, तो वहाँ पे 2 एग्जांपल फिक्स आपको रहेंगे ही रहेंगे। तो देखते हैं अभी 3 + 2d इंटू कॉस, अभी कॉस जेड ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपको मिल जाएगा 3 cos of z plus 2 into derivative of cos of z, d into cos z means derivative of cos z, and it is directly minus sine of z, and I take directly divided by
9 माइनस माइनस प्लस 4 मीन्स 13 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस इट इज 1/2 इंटू ई रेस टू जेड साइन ऑफ जेड हो जाएगा। ओके, और फाइनली मुझे मिलेगा दिस इज 3 cos z minus 2 sin of z, make a difference between z and 2. This is 13 plus 1/2 into sine, sorry, it is e raised to z into sine of z. That is my yp. ये मेरा yp मिल जाएगा। ओके, तो ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे, देखो, सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 2, ये सॉल्यूशन किसका फाइंड किया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 का। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp। ओके, तो yc का वैल्यू डालना है, yp का वैल्यू डालना है। मेरा yc है c1, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, e raised to z in bracket c1 cos of root 3z plus c2 sin of root 3z प्लस yp डालना है। देखो yp मुझे अभी अभी मिला, इट इज 3 cos ऑफ 1/13 में पहले ले सकता हूँ ब्रैकेट में, लाइक दिस 3 cos ऑफ z माइनस 2 sin ऑफ z प्लस 1/2 e raised to z sin ऑफ z। ये तो हो गया 2 का इक्वेशन, बट हमको तो चाहिए था इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन। ये 2 का सॉल्यूशन मिल गया, हम वी आर इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 के लिए क्या करना है, खाली जो सब्स्टिट्यूशन किया था वो रिप्लेसमेंट करना है। दैट्स इट, we'll get the solution of equation number 1. The solution of 1 is so y is equal to e raised to z। e raised to z के लिए क्या रिप्लेसमेंट किया था, देखो अभी x के लिए हमने e raised to z रिप्लेस किया था और z के लिए log x रिप्लेस किया था। ये दोनों रिप्लेसमेंट अभी यहाँ पे करने हैं। जहाँ पे e raised to z है वहां पे x डालना है, और जहाँ पे log x है वहां पे, जहाँ पे z है वहां पे log x डालना है। तो e raised to z है, यहाँ पे x आ जाएगा, दिस इज x ब्रैकेट c1 cos ऑफ √3 log x। देखो इस z के लिए मैं log x रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस c2 sin ऑफ √3 log x। ये हो गया मेरा yc का रिप्लेसमेंट, प्लस 1/13 is there in bracket 3 cos of log x, z की जगह पे log x, माइनस 2 sin of log x, z की जगह पे log x, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 1/2 एज इट इज, e raised to z की जगह पे x into sin of log x। That's it. This is my solution of equation number 1, Cauchy equation. Do you understand? Any doubt? If you have any doubt, then you can ask. So let us move to the one more example. Okay. So if you understand this, one more example we'll discuss. बहुत बार ऐसा होता है कि examples बहुत simple हो जाते हैं, okay? और बहुत बार ऐसा भी होता है कि examples थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, जैसे ये example बहुत लेंदी था, okay? But it is simple because जो भी हमने अभी तक देखा है शॉर्टकट मेथड में, ले लो कि जैसे हमने वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया शॉर्टकट मेथड में, डिफरेंट केसेस डिस्कस किए, वो सारे यहाँ पे यूज करने हैं। तो अगर आपने वो अच्छे से लर्न किया है देन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, अदरवाइज यू हैव सम डाउट्स। ओके, तो यहाँ पे आप एमबीपी भी यूज कर सकते हैं जनरल मेथड भी, बट दैट इंटीग्रेशंस बिकम डिफिकल्ट फॉर
that purpose we are using a shortcut method only. Okay, now let us see one more example to understand this visual type. Example 2. So it is x square d square y by dx square minus 3x dy by dx plus 5y is equal to x square sine of log x. Log x. This is one more simple example. It is a Cauchy equation actually. Now, once if you know this is Cauchy equation, simply take that, directly put x is equal to e raised to z or z is equal to log x. Okay, and then after that, you know what values now we are going to substitute. X square d square y by dx square is equal to d minus 1 into y, और x dy by dx का किससे रिप्लेस करना है आपको? This is replaced by dy capital, where d is equal to what? D is equal to d by dz. So call it as equation number 1. So equation 1 becomes, तो इक्वेशन 1 देखो क्या हो जाएगा अभी. अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन लेते हो तो एक्स स्क्वायर के जगह पे मैं यहाँ पे लूंगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर मीन्स डी माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 एज इट इज. एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे कैपिटल डी वाई प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू, अभी x ई रेस टू जेड है आपका, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई रेस टू 2z हो जाएगा. ओके, इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स की जगह पे z आएगा. और सिर्फ हमको ये सॉल्व करना है. तो d इंटू डी मीन्स डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d प्लस 5 इंटू वाई कॉमन, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू 2z इंटू साइन ऑफ z. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इंटू वाई is equal to e raised to z into sin of z. Call it as equation number 2. मेरा equation number 2 हो जाएगा. अब ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन ऑफ 2 इज, पहले सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का और देन वी कैन रिप्लेस द वैल्यूज. ओके, तो ये सॉल्यूशन के लिए पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है. व्हाट इज माय ऑक्सिलरी इक्वेशन? So my auxiliary equation is as that we have proceed further. So this is d square minus 4d plus 5. This is equal to 0. तो मेरे यहाँ पे रूट्स मिल जाएंगे मुझे 5 इंटू 1 किया -5 नहीं होता है. और ओके, सो दिस इज अगेन इरेड्यूसिबल. अभी अगर b स्क्वायर माइनस 4 ac किया 16 माइनस 20 इज -4, तो फिर से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, कैल्शियम में फाइंड करके आपको मिल जाएंगे. सो d इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस i, ये यहाँ पे रूट्स मिलेंगे. मेरा सिंपली yc मिलेगा e रेस टू 2z, अल्फा 2 है बीटा 1 है, e रेस टू 2z c1 cos of beta is 1 cos of z plus c2 sin of z. This is my complementary function. Okay, अभी yp के लिए जाना है हमको. My yp is equal to 1 upon phi of d. Phi of d means d square minus 4d plus 5 into e raised to 2z into sine of z. Let me check whether it is sine of z or not. Yes, e raised to 2z यहाँ पे, not z. It is 2z into sine of z. Okay. तो अभी फिर से फिफ्थ वाला केस, e raised to z आगे लेना है, take it outside, और जहाँ पे आपका d है वहां पे क्या रिप्लेस करना है? सो रिप्लेस d by d plus 2.
जहाँ पे डी है वहां पे d+2 रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा d+2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू d+2, ओके, प्लस 5 इंटू साइन ऑफ z। यहाँ पे मिल जाएगा मुझे साइन ऑफ z। गॉट इट? तो ये तो हो जाएगा मेरा -4 इंटू d+2 प्लस 5 इंटू साइन ऑफ z। Now solve the denominator. E raised to 2z is there as it is 1 upon. If we solve this a with the help of a plus b bracket square, d square plus 4d plus 4 minus 4d minus 8 plus 5, take it, okay, into sine of z। तो यहाँ पे देखो d square plus 4d plus 4 minus 4d minus 8, 2 into minus 4 into 2 is minus 8 plus 5। तो ये प्लस 4d माइनस 4d तो सिंपली कैंसिल हो जाएगा, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा देखो, अभी e raised to 2z as it is 1 upon simply it is d square 4 plus 5 is 9 minus 8 plus 9 simply, so this is only d square plus 1 not 9, sorry, because see this is 4 plus 5 is 9, 9 minus 8 is 1 into sine of z। Okay, one more interesting thing will come actually here. See, case fail. If we replace d square by -1, case is getting fail. d square replaced by -1, क्योंकि a मेरा 1 है, उसका स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई बाय माइनस, सो d square if we replace by -1, so -1 plus 1 get cancel, case fails। अगर केस फेल हुआ तो हमको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो ये e raised to 2z यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। तो ऊपर z ने मल्टीप्लाई करना है, अभी हम x से मल्टीप्लाई करते थे, देखो केस फेल होता तभी, क्योंकि अभी z में इक्वेशन है तो z ने मल्टीप्लाई करना है। तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 2d इंटू साइन ऑफ z। 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन डी मीन्स इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे 1/2 z e raised to 2z as it is इंटीग्रेशन ऑफ साइन z dz, और साइन z का डेरिवेटिव माइनस कॉस z होता है। सिंपली इट इज 1/2 z into e raised to 2z into minus of cos of z, okay। And now finally I get my yp is equal to minus 1/2 z e raised to 2z into cos of z, like this, okay। So hope you understand this, and now finally you can find out the complete solution of 1। So therefore complete solution of 1 is y is equal to yc plus yp। So yc I have now, this is equal to e raised to 2z in bracket c1 cos of z plus c2 sin of z, and then minus 1 upon 2 z e raised to 2z into cos of z। और यहाँ पे z की जगह पे log x डालना है सॉल्यूशन के लिए। पुट z इज इक्वल टू log x एंड e raised to z इज इक्वल टू x। तो ये अगर रिप्लेसमेंट किया आपने तो 1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, y इज इक्वल टू e raised to 2z मींस x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा इंटू c1 cos ऑफ z की जगह पे log x आ जाएगा प्लस c2 sin ऑफ log x आ जाएगा, ओके।
Then after that, minus 1 by 2 as it is. Z means log x. Okay. E raised to z means e raised to 2z means x square, and cos of log x. That's it. This is my final answer. Okay. So hope you understand this method. So we will discuss one more example in the next lecture, and then we'll start the legendary homogeneous linear differential equation. If you have any doubt, you can ask. Okay, so fine.